بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرے کپتان نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں۔ اب سے لوگ اتنا کہا ہے کہ وہ ہفتے سے ان کی جو تحریک ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے۔ اب اس کی انہوں نے وضاحت تو نہیں کی کہ وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے یا ان کی تحریک کا رخ کراچی کی طرف۔ البتہ ایک بات ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی اور بقول مولانا فضل الرحمان یہ ملاقاتیں بے نتیجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا جو لبو لہجہ ہے چکوال کے جلسے میں مسٹر ایکس نے مسٹر بھائی کے بارے بڑا سخت رویہ ہے۔ اب تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ارکان کو لوگوں کو کہ اگر کوئی آپ کو دھمکی دے آپ بھی اس کو اسی لبو لہجے میں جواب دیں۔ چلیے اس پہ ہم آپ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئی کان کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، مجھے اب بھی شک ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ رانا ثناء اللہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکیم ثناء اللہ ایک ایسی معجون تیار کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب وہ اسلام آباد کی جانب آئیں گے تو ایسی دھونی دیں گے کہ دوبارہ نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کا جانا۔ اور عمران خان بھی جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اس حد تک کروئل سے مراد میرا یہ ہے وہ سیاسی لحاظ سے کسی کو معاف نہیں کرتے۔ چلے ایک اجلاس بھی ہوا ہے، کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، وہاں عمران خان نے ان لوگوں کی بڑی کھچائی کی ہے کہ جو ان کی اجازت کے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں، اور انہوں نے وضاحت پیش کی کہ ہمیں فون آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فون آتا ہے تو انہیں کہیں کہ آپ عمران خان سے بات کریں، آپ میں سے کوئی نہیں ملے۔ اگر میرے بتائے بغیر آپ میں سے کوئی ملا تو میرے لیے یہ میرے لیے بڑی سخت بات ہوگی، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کچھ لوگ ان کی اجازت بھی دیتے رہتے ہیں، جو پیغام رسانی بھی کرتے ہیں، کچھ ان کی اپنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی بات بنی نہیں۔ عمران خان جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو سکتا ہے ایسی بات دوستوں، عمران خان صاحب کو اگر وہ اپنی بات منوانے کے لیے اتنے بزد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ پاور سے اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی مقرر کرا لیں گے اور باقی فیصلے بھی کرا لیں گے، ممکن ملنے کو نظر نہیں آتا۔ عمران خان صاحب کو تو یہ تو رعایت مل گئی ہے کہ ان کے خلاف جو دہشت گردی دفعہ تھی وہ ہائی کورٹ نے بند ختم کر دی۔ ابھی ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے کوشا خانہ والا، وہ اس کے خلاف چلے گئے ہیں عدالت میں۔ عمران خان صاحب کے اس کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بلا رہے ہیں توہین عدالت میں، اور اگر آپ نہ آئے تو پھر ہمیں کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری پر نواز شریف سے مشاورت جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف سے آرمی چیف کی تقرری یا توثیق پر کوئی بات کرنے کی نہیں، ایسی بات نہیں۔ ممکن ہے وہ انہوں نے کوئی بات کی ہو، لیکن کوئی چیز اور ریکارڈ نہیں کی جا سکتی۔
खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान जो है उसकी कोई मैं समझता वैल्यू नहीं है, इसलिए कि ये कोई सरकारी तर्जुमान का बयान नहीं है। चलिए जी, अगर वो मियां नवाज शरीफ को मुशावरत करते भी हैं तो बुराई क्या है? वो एक पाकिस्तान की इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार जमातें हैं उसमें पार्टनरशिप में सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान की बात कर नवाज मरियम नवाज का केस भी हाई कोर्ट में ज़ेर बहस है। नैब के प्रोसिक्यूटर से अदालत ने 4 सवाल भी कर दिए और बायत अदालत ने कि नवाज शरीफ का कंपनियों और फ्लैट से तल्लुक खरीदारी के लिए अदायगी साबित करें और मरियम का अपार्टमेंट से लिंक भी बताएं और कहा है साबित करें कि प्रॉपर्टी से नवाज शरीफ ने खरीदी है। अगर खरीदी गई तो फिर मामलत का इल्जाम आएगा। ट्रायल में ये साबित किया जाए, साबित किया तो बताएं। चले, एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और मेरा ख्याल है बहुत जल्द मरियम नवाज का भी केस का फैसला होने वाला है। और फिर सबसे बड़ी खबर ये है, सेनेटर इसहाक डार पाकिस्तान आ रहे हैं और सेनेटर इसहाक डार ने अदालतों से रजू कर ली है और वो गिरफ्तारी से पहले जमानत जो है उसकी कराने के लिए वो कोशिश है और फिर वो अदालतों के सामने सरेंडर कर देंगे, पेश हो जाएंगे और उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमात बनाए गए, सारे के सारे ढेर हो जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसहाक डार का पाकिस्तान की मीशत में बड़ा रोल है। एक डॉलर की जो प्रवास ऊपर की तरफ जा रही है, अब या शहबाज शरीफ को कोई काम करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ऐसा सख्त वज़ीरत लाना चाहिए जो खाल उधेड़ ले उन लोगों की जो पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने के लिए। कोई रियायत न की जाए, डॉलर के माफिया के साथ कोई रियायत न की जाए और जो भी रियायत करता है इसका मतलब वो बराबर का शरीक है। पाकिस्तान को कंगाल कर दिया लोगों को, रोजाना डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपये की कीमत गिर रही है। जब तक ये कंट्रोल नहीं करते, अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ 19-20 में हो तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन पाकिस्तान में अजीब सूरत हाल है। बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब ये जंग भी हार जाए, उनको अब इस जंग में अपने आप को ज्यादा देर मुलव्वस करना भी नहीं चाहिए। अक्टूबर आ रहा है, नवंबर आए और नवंबर की 29 तारीख से पहले फैसला होगा। जो भी फैसला होगा आइन और कानून के मुताबिक। इमरान खान को परेशानी नहीं करनी चाहिए और इस इशू को जलसों की जीनत नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बहुत ही गैर मामूली संजीदा मसाइल है, इंतहाई अहम मसाइल है। मेरी ये गुजारिश है इमरान खान साहब से कि सियासी मामलात को आर्मी चीफ की तैनाती से नहीं जोड़ना चाहिए। सुबह शाम ये राग जो है इसको आप खत्म कर दें। आपका जो आप रोना रो रहे हैं, सबको मालूम है क्यों आप रोना रो रहे हैं। नवंबर आपके हाथ से निकला जा रहा है, इलेक्शन नवंबर में होने का कोई इम्कान नहीं है और आप यही चाहते थे कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाए और फिर आप बरसे आ जाएं और फिर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ करें। अपनी मर्जी का जो लफ्ज़ है ना इमरान खान साहब, आपने अपनी मर्जी का ISI चीफ भी लगाने की कोशिश की, वो भी आपको नहीं कर सकते। आप बनाए हुए उस एस्टेब्लिशमेंट के बुत हैं। 2018 में एस्टेब्लिशमेंट आपके बुत में जान न डालती तो आप इक़्तिदार की मज़े न ले रहे होते, आप कहीं धक्के खा रहे होते अपोजिशन में। आज आप अपोजिशन में इक़्तिदार से महरूम हो गए, तो
आंखें दिखा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं, रोजाना डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं बिगड़ेगा नारायण साहब अपोजिशन का, आपका बिगड़ जाएगा। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। आप इस मुल्क में एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। आपके साथ यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, एक बड़ी तबका आपके साथ है। आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, इनको अच्छे तरीके के साथ ट्रेन करें और इनको मुल्क की इकानमी और मुल्क को बनाने में लोगों को यूज करें। इक़्तिदार आपके हाथ से जा चुके हैं, जब दोबारा मिलेगा तो नसीब से मिलेगा, लेकिन आप अपनी ये लड़ाई जो है इसको महदूद करें, शायद फिर आप बच जाएं। लेकिन आप महदूद नहीं करेंगे तो आपके लिए आपके सर पर जो तलवारें लटक रही हैं उससे तो यही नजर आता है कि एक दिन आप फारग हो जाएंगे, आप अपनी पार्टी की क़यादत भी नहीं कर सकेंगे और आपकी पार्टी भी बैन हो जाएगी। इन चीजों से बचाने के लिए आपको रैशनलाइज होना चाहिए, एक ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए जिससे आप हालात को बेहतर बना सकें, अपनी पार्टी को भी बेहतर बना सकें, अपने आप के लिए भी हालात बेहतर बना सकें। कब तक आप दीवारों के साथ टक्कर मारें? उन दीवारों से टक्कर मारना छोड़ दें जो आपके साथ। आप जलसे आपने करके दिखा दिए, आप इंतजार करें जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों, उसमें अपना जोर आपकी जो पार्टी है अपना जोर मिले। फिर आपने आम इंतखाबात से पहले जो मैं आपको लहू लुहान करके सियासी शेख बना दिया तो फिर अल्लाह ही है। शुक्रिया।